Hi everyone, I'm Dr. Nishant Gupta and welcome to the channel The 99 Percentile Club. Guys, आज की सेशन में हम लोग सेट डिस्कस करेंगे which is based on games and tournament. Before that, All India mock test is all set for 16th of October at 12 noon. दोपहर 12 से 2 बजे. It will be a 120-minute test with 66 questions and you will get a chance to win rewards and scholarship worth rupees 25 crores. So 1000 rankers, top 1000 rankers to get CAT forms fee refunded. No way you stand among 50,000 serious CAT takers. This test is curated by the experts, those who have more than 20 years of teaching experience, and the 100 percentillers. So this is based on latest CAT exam pattern. 4 high quality LRDI sets will be there. 22 tricky quant questions and perfect VARC section with close options जैसा हमें CAT में भी देखने को मिलता है. So you'll get the analysis by the top CAT gurus, question selection and time management. ये सब चीजें आपको मिलने वाली है. You can enroll for this for free using the code DNG. Unacademy is also giving you a mega boot camp, a 12-hour live marathon session by top educators, toppers, and guest speakers. That is happening on 14th and 15th October. The link is available in the description. So you can enroll for both the courses for free by using code DNG. So stay tuned, guys. Let's start with the agenda. So here's the set on your screen. Pause the video, read the set, try to make a table, and then try to solve the answers. So here are the question on your screen. Again, pause the video and mark the answers. I hope you must have tried this by now. So let's discuss this. It says there are 4 thieves A, B, C, D. They stole some money individually, and divided the stolen money among themselves. The following operations were performed while dividing the money. First operation is, let's say they have different money. A has Asher has A money, B Brian, Cathal has C, and Dino has D. So total is A plus B plus C plus D. Now twice the money with B is taken from A and divided equally between D and C. So we can use the in the alphabets, variables, or we can always use the numbers in this kind of questions. Here, the last line says after the 4 operations, the sum of money with A, B, C, D was equal. And if you look at the statement, तो आपको पता लगेगा कि कहीं पर ये ट्वाइस कर रहे हैं, कहीं पर ये हाफ और ऐड कर रहे हैं, देन थ्राइस कर रहे हैं. सो लेट्स पिक अप ए नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 4 का भी मल्टीपल हो जाए, 3 का भी मल्टीपल हो जाए, और जिसका हमें 1/3 2/3 करना इजी हो जाए ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो. सो आई एम पिकिंग अप अ नंबर 36. फॉर एग्जाम्पल, if finally A, B, C, and D had 36 rupees. In all, they had 144. 36 plus 36 plus 36 plus 36 rupees, 144. So ये किसी भी ऑर्डर में इनके बीच में डिवाइडेड हो, किसी भी रेशियो में डिवाइडेड हो, बट द टोटल विल ऑलवेज रिमेन 144. सो इनिशियली भी जो था टोटल दैट वाज 144. आफ्टर फर्स्ट राउंड, after second round, after third round, and after fourth round, which is the final round. अब हम इसको रिवर्स शुरू करते हैं. सो यहाँ पर हम बैक कैलकुलेशन से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे. इफ यू लुक एट द लास्ट स्टेटमेंट, इट सेज 40% of the sum of money with D is taken from him and given to B. So फोर्थ राउंड में क्या हुआ, हमने D से 40% मनी लिया and that money was given to B. Now understand it this way. If we have taken 40% of the money from D, that means he is left with 60% of the money in the fourth round. जो भी उसके पास फोर्थ राउंड का इनिशियल रहा होगा उसमें से 40% मनी आपने ले लिया. सो एट द एंड ऑफ फोर्थ राउंड ही इज लेफ्ट विथ 60% ऑफ द मनी, और एज पर आर अजम्पशन उसके पास 36 रुपीज है, विच मीन्स ये 60% होना चाहिए उस अमाउंट का जो उसके पास फोर्थ राउंड के स्टार्टिंग में रहा होगा.
या फोर्थ जब उन्होंने ऑपरेट किया तब रहा होगा। सो अगर 60% 36 है, सो दैट मीन एट द स्टार्ट ऑफ फोर्थ राउंड ही हैड 60 रुपीज, जिसमें से 40% ऑफ 60 is 24 was taken from him and it was given to B। यानी ब्रायन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके पास ये जो 36 रुपीज आ रहे हैं ये तब हो रहे हैं जब उसको 24 रुपीज डी से मिल रहा है। डी का 40% डी से लिया और बी को दिया गया। सो आफ्टर दिस 24, ये डी के बाद जो 24 रुपीज गए उसके बाद उसके पास 36 रुपीज बच रहे हैं। अब बी को 24 रुपीज मिलने के बाद 36 हो रहे हैं, दैट मीन इनिशियली ही हैड 12 रुपीज ओनली एट द स्टार्ट ऑफ फोर्थ राउंड, उसके पास 12 रुपए रहे होंगे। ठीक है, हमने ये ध्यान रखिएगा, हमने 36 रुपीज एज्यूम किया। यू कैन एज्यूम एनी नंबर, बट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन मैंने ऐसा नंबर पिक किया जो 4 का और 9 का मल्टीपल हो जाए। सो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ फोर्थ राउंड में ए और सी के अमाउंट के साथ कोई चेंज नहीं हुआ। सो जो उनके पास फोर्थ राउंड के स्टार्टिंग में अमाउंट रहा होगा वही एंड में रहा होगा। सो अगर 36 रुपीज एंड में है तो स्टार्टिंग में भी 36 रुपीज रहे होंगे, ए के पास भी और सी के पास भी। अब इससे एक स्टेप पीछे चलते हैं। इन द थर्ड राउंड thrice the money with B is taken from C and divided between A and D in the ratio of 2:1। देखो किसका थ्राइस? थ्राइस द मनी विद बी। सो बी के पास अगर हम चेक करें तो थर्ड राउंड के एंड में 12 रुपए थे। इसका थ्राइस यानी 36 रुपीज वॉज एक्चुअली टेकन फ्रॉम सी एंड वॉज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड डी। यानी थर्ड राउंड में अगर हम चेक करें तो थर्ड राउंड में बी के साथ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बी के अमाउंट का थ्राइस लिया गया था, दैट टू फ्रॉम सी। इसका मतलब इसके पास यहाँ पर 12 रुपीज रहे होंगे, वही 12 रुपीज फोर्थ राउंड का स्टार्ट था जिसमें 24 रुपीज ऐड होकर 36 हुआ। अब इस 12 का थ्राइस इज टेकन फ्रॉम सी, तो ये 36 रुपीज, इसका थ्राइस इज 36 was taken from C and then he was left with 36 rupees at the start of round 4, which means C had 72 rupees at the start of round 3। देखो 36 रुपए इसके पास बचे राउंड 3 के एंड में, और वो तब है जब उसने 36 रुपीज दे दिए। इसका मतलब हुआ कि उसके पास इससे पहले 72 रुपीज रहे होंगे, तभी तो उससे ये अमाउंट हमने माइनस करके निकाला होगा। Now this 36 rupees was divided between A and D in the ratio of 2:1। So 36 का 2/3 और 1/3 अगर हम करते हैं तो 24 and 12 आ जाता है। So 36 का 2/3 which is 24 was given to A and 12 rupees was given to D। अब फोर्थ राउंड के स्टार्ट में ए के पास 36 रुपीज है, जिसमें से उसे थर्ड राउंड में 24 रुपए मिले, यानी एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड राउंड ही हैड ओनली 12 रुपीज। सेम वे हम डी की अगर बात करें तो उसके पास फोर्थ राउंड के स्टार्ट में 60 रुपीज है, जिसमें से 12 रुपीज उसे थर्ड राउंड में मिले, यानी थर्ड राउंड के स्टार्टिंग में ही हैड 48 रुपीज, तभी तो 12 ऐड होके 60 आ रहा है। अब इससे एक स्टेप पीछे चलते हैं। हाफ द मनी विद डी इज टेकन फ्रॉम सी एंड वाज गिवन टू डी। सो डी के पास जो भी मनी यहां पर रहा होगा, डी के पास लेट्स से सेकेंड राउंड के स्टार्ट में, एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड राउंड इफ डी हैड डी मनी, तो उसका हाफ उन्होंने लिखा हाफ द मनी विद डी, इसका हाफ लिया और डी को ही दे दिया। तो डी के पास फाइनली डी प्लस डी बाई टू यानी कि 3D/2 मनी हो जाना चाहिए एट द एंड ऑफ सेकेंड राउंड और एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड राउंड। देखो जो सेकेंड राउंड का एंड है वही थर्ड राउंड का स्टार्ट है, तो ये जो 48 रुपीज है दिस इज एक्चुअली 3/2D, विच मीन्स डी का वैल्यू अगर हम निकालते हैं सो दैट इज 32 रुपीज। इसका मतलब हुआ कि सेकेंड राउंड के स्टार्ट में डी के पास 32 रुपीज था, इसका हाफ 32 का हाफ यानी 16 रुपीज सी से लिया गया, सी से लिया गया और डी को दे दिया गया। अब डी को 16 रुपीज मिला और उसके पास 48 हो गया, बिल्कुल सही है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो जब हमने सी से 16 रुपीज लिया उसके बाद उसके पास 72 रुपीज बच रहे,
which means at the start of round 2 he had 88 rupees, और बी और ए का यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब उनके पास इस राउंड में 12 रुपीज रहे होंगे. नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्वाइस द मनी विद बी, ट्वाइस द मनी विद बी इज टेकन फ्रॉम ए एंड इज डिवाइडेड इक्वली अमंग डी एंड सी. यानी कि फर्स्ट राउंड में बी के अमाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई. इसका ट्वाइस, बी के अमाउंट का ट्वाइस विच इज 24 वॉज टेकन फ्रॉम ए, यानी 24 हमने यहां पर लिया होगा ए से, एंड दैट वॉज गिवन टू डी एंड सी इक्वली, यानी इसको भी 12 रुपीज हमने दिया होगा और इसको भी हमने 12 रुपीज दिया होगा. नाउ अंडरस्टैंड, ए के पास फर्स्ट राउंड के इनिशियली जो भी रहा होगा स्टार्टिंग में, उसमें से 24 रुपीज माइनस करके 12 बचता है, विच मीन्स इनिशियली ही हैड 36 रुपीज. अगर हम बी की बात करें तो उसमें कोई चेंज नहीं है, वो 12 ही रहेगा. अगर हम बात करें सी की, तो सी के पास फर्स्ट राउंड में उसको 12 रुपीज मिले और तब 88 हुआ, विच मीन्स इनिशियली ही हैड 76 रुपीज. और सेम वे अगर हम डी का इंटरप्रेट करें तो डी को 12 रुपए मिलने के बाद 32 हुआ, विच मीन्स इनिशियली ही हैड 20 रुपीज. तो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस. अभी जो हमने नंबर लिया है ना 36, ये हमने एजम्पशन ली है, सो यू कैन राइट दिस 36A, विच मीन्स अगर कोई हमें क्वेश्चन कंडीशन बेस मिलेगा, सो विल चेंज द डेटा प्रोपोर्शनेटली, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू दिया होगा हम उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे. Now we can answer all the questions based on this data. So let's try all the questions one by one. The first question is, what fraction of total money is 144, was received by B initially. अगर आप B की बात करें, so B को initially मिले थे 12 rupees, which means to 12 over 144, which is 1 by 12, which is 1 by 12. So option C is the right answer. Now the second question is, if A received $72 initially. Now if you look at the data, हमारे हिसाब से A को 36 मिल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 72 मिल रहा है. इसका मतलब हमारे को टोटल वैल्यू डबल करनी है सारी की सारी वैल्यूज. हमने तो कोई नंबर पिक किया था रेंडम, आप 72 करके भी कर सकते थे, बट वो कह रहा है कि अगर इनिशियली ए को 72 मिला जबकि हम उसको 36 बोल रहे हैं, विच मीन्स डबल, तो उन्होंने हमसे पूछा है देन फाइंड द सम ऑफ मनी विद ए बी सी डी इनिशियली. ठीक है, सो इसका मतलब टोटल सम ऑफ मनी वुड बी डबल ऑफ दिस. अभी हम 144 बोल रहे हैं, देन इट विल बी 288. So none of these is the right answer. Next question is, what is the percentage of money with C at the end? यार ये क्वेश्चन तो अगर आप डेटा रीड करें, सो डेटा में लिखा हुआ था कि आफ्टर दीज 4 राउंड्स और ऑपरेशंस द सम ऑफ मनी विद ए बी सी डी वाज इक्वल. सो यानी इन द एंड सबके पास इक्वल अमाउंट था, विच मीन सी मस्ट हैव 25% ऑफ द टोटल मनी, है ना. सो एट द एंड तो सबके पास इक्वल है, 25 25 25 25%. So this was a direct question. For this question, you don't need to solve this table. Next is, what fraction of total sum? Total sum is 144 जो हम assume कर रहे हैं, of money was received by D initially. और अगर हम चेक करें तो D को initially 20 रुपीज हमने दिए हैं, which means the fraction of money D had initially was 22 over 144. अगर हम इसको कैंसिल करते हैं 4 से तो it will be 36. So 5 by 36 is the right answer. So guys, for more such videos, don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.